Now we will discuss about the electrical properties of solids. अब solids show wide range of electrical conductivity. Accordingly, the solids are classified into three categories. एक है first है conductor, then second is insulators and third is semiconductors. Now, what is the meaning of conductors? Solids having the electrical conductivities in the range of 10 raised to 4 to 10 raised to 7 per ohm per meter are called conductors. Metals and electrolytes. Metals and electrolytes. And these electrolytes are ionic solids. These are conductors of electricity, and metals can conduct electricity by the movement of electrons, and electrolytes can conduct electricity by the movement of ions. Now, in this section, we will discuss about the conductivities of the metals and semiconductors. Now, second category is insulators. The solids having low electrical conductivities, and this is in the range of 10 raised to minus 20 to 10 raised to minus 10 per ohm per meter, are known as insulators. They cannot conduct electricity. The most of the non-metals and molecular solids are in this category. Now, third type is semiconductors. The solids whose electrical conductivities is in the range of 10 raised to minus 6 to 10 raised to 4 per ohm per meter are known as semiconductors. Semiconductors are intermediate in between the conductors and insulators. Now, the conductivity is discussed in terms of band theory. It is discussed in terms of band theories. Electrical conductivities of solid metals, metalloids, and non-metals can be explained in terms of band theory. And a band is made up by closely spaced electronic energy levels. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स अगर नज़दीक हैं तो हमको एक बैंड के शक्ल में हमको मिलेगा. और यहाँ पे जो बैंड फॉर्मेशन है, दिस बैंड फॉर्मेशन कैन बी कोरिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स by the interaction of atomic orbitals. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनके कॉम्बिनेशन से हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे विच स्प्रेड्स ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल. इसी तरह जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, इसी तरह हमको इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के कॉम्बिनेशन से हमको एक बैंड मिलेगा. एंड ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इसके बारे में हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, यू नो वेरी वेल. एंड इन केस ऑफ बैंड थ्योरी देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंड्स. फर्स्ट इज कंडक्शन बैंड एंड सेकंड इज वैलेंस बैंड. द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स. द हाईएस्ट energy bands containing electrons, it is known as a conduction band. The electrons are free to move throughout the conduction band and they can conduct electricity. And ये जो बैंड है कंडक्शन बैंड, it is formed by closely spaced electronic energy levels in case of solids. एंड कंडक्शन बैंड्स आर पार्शियली ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स. इनमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और जब इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा एट दैट टाइम इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड.
and the electrons are delocalized over the entire solid. Now, second type of band, it is known as valence band. The band with lower energy, the band with lower energy, it is known as valence band. And the valence band consists of electrons which are not free to move, which are not free to move, because these electrons are tightly held to their respective nuclei. कंडक्शन बैंड आ गया, उसके बाद वैलेंस बैंड, ये दोनों बैंड हमको लेना रहेगा, एक्सप्लेन करना रहेगा बैंड थ्योरी में. नाउ थर्ड aspect of band theory, it is band gap. The energy gap in between conduction band and valence band, this gap is known as band gap, and this band gap decides whether the electron will shift from valence band to conduction band or not. If there is large energy difference, in between valence band and conduction band, and the electrons present in the valence band do not have sufficient thermal energy to promote into the conduction band, this band gap, at that time that band gap is known as forbidden zone. It is known as forbidden zone. Band gap, it is present in the conduction band and valence band. Now, अब जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी, एंड इट इज़ एज फॉलोज. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम metallic conductors. Metals are good conductors of heat and electricity. You know the basic properties of metals, that is metals are malleable, ductile, metals are good conductors of heat and electricity, and metals are lustrous in nature. In last lectures I explained about the metallic bond. The metallic bond, it is the force of attraction in positively charged metal ions and delocalized electrons. अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, delocalized electrons, ये delocalized electrons मेटल्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. इसके पहले भी मैंने आपको कहा है कि द cations are embedded in the sea of electron, और उस मॉडल को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. These electrons are mobile electrons. ओके. अब यहाँ पे मेटल्स में जब s ऑर्बिटल्स हैं तो इनकी ओवरलैपिंग से जो बैंड मिलेगा दैट इज़ नोन एज s बैंड. अगर s और p ऑर्बिटल्स हैं तो हमको मिलेगा s बैंड और p बैंड. ये सब हमको इस तरह मिलेगा. अब यहाँ पे जो मेटल्स हैं, मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, एंड द मेटेलिक बॉन्ड, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब जो मेटेलिक सॉलिड है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल कैटायंस. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल कैटायंस, और इनके बीच में सब इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल. अब यहाँ पे ये जो कैटायंस रहेंगे, सॉलिड स्टेट मेटेलिक सॉलिड में जो कैटायंस रहेंगे, दीज कैटायंस शो वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेट होते रहेंगे वो, ये कैटायंस. ओके, ये कैटायंस शो वाइब्रेशन, एंड इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, then the vibrational motion of cations increases,
अब जब वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होगा, वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीजेस, जब वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज होगा देन इट इंटरप्ट्स द फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्री मूवमेंट में रुकावट पैदा करेंगे, जिसकी वजह से जो मेटल्स की कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। देयरफॉर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके रीज़न में ये सब आएगा। व्हाट इज़ द रीज़न? दैट द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ वाइब्रेशनल मोशन ऑफ cations increases, therefore the conductivity of metals decreases with increase in temperature. Now यहाँ पे हम देखते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर्स में जो एनर्जी गैप है ये ज़्यादा है इंसुलेटर्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने कंसीडर कर लिया वैलेंस बैंड, इसको हमने कंसीडर कर लिया कंडक्शन बैंड, और ये जो हिस्सा है इसको कहा जाएगा बैंड गैप या एनर्जी गैप। और यहाँ पे ये जो गैप है ये काफ़ी दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? फॉरबिडन जोन। इट इज़ नोन एज फॉरबिडन जोन। अब यहाँ पे वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दीज टू आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज एनर्जी डिफरेंस। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव सफिशिएंट थर्मल एनर्जी टू प्रोमोट इनटू द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं होगा, कंडक्टिविटी भी हमको इसमें नहीं मिलेगी। देयरफॉर यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड है, ये दिस कंडक्शन बैंड रिमेन्स वैकेंट एंड देयरफॉर द मटेरियल इज द इंसुलेटर। इसको कहा जाएगा इंसुलेटर। नाउ नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेमी कंडक्टर्स। इसके बारे में हमको थोड़ा डिटेल में देखना रहेगा। सेमी कंडक्टर्स जो हैं ये ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 एलिमेंट्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम, these elements are used as the semiconductors। ये सेमीकंडक्टर्स हैं। अब यहाँ पे जो इंसुलेटर्स के जैसा यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, इनके अंदर का जो कंडक्शन बैंड है इट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी। कंडक्शन बैंड इज़ एम्प्टी। अब यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इनके, विच हैज़ इनफ एनर्जी एंड दैट energy is the thermal energy, and this energy is sufficient to promote the electron from valence band to conduction band। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब the material becomes conductor। ये सेमी कंडक्टर क्यों कहा जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे वैलेंस बैंड अभी तो, कंडक्शन बैंड अभी तो एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहेंगे जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है, and that electrons by using this energy will promote from valence band to conduction band। अब conduction band में इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब the material becomes conductor, therefore these materials are known as semiconductors। अब यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड अब यहाँ पे रहेगा, it is partially filled and valence band becomes partially empty। अब इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये यहाँ पे फ्रीली मूव करेंगे, देयरफॉर द मटेरियल बिकम्स द सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे ये जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सच अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विच हैज़ लो बट फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विच हैज़ लो बट फाइनाइट electrical conductivity is known as intrinsic semiconductor। एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है ये, डिफाइन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? द प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल विच हैज़ अ वेरी लो बट फाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर।
यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर when temperature increases, then electrons from valence band to electrons can be promoted from valence band to conduction band. इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया, इसका मतलब इसका फ्री मूवमेंट स्टार्ट हो गया और जो मटेरियल है वो बन गया सेमीकंडक्टर। जो मटेरियल है वो बन गया कंडक्टर। अब यहाँ पे ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर फॉर एग्जांपल ये देखो, ये सिलिकॉन इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर, इंसुलेटर एट low temperature, but it is conductor at high temperature। ये MCQ का क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसका आंसर है इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर, या ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर रहेगा इंसुलेटर, ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर रहेगा एट लो टेम्परेचर। ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बाय डोपिंग, conductivity increases by doping, the process of addition of minute impurity, the process of addition of minute impurity to a semiconductor increases the conductivity, it is called doping, and the impurity which is added, it is known as dopant। ये जो प्रोसेस रहेगा ये डोपिंग मटेरियल, और जो इम्प्यूरिटी रहेगा दैट इज नोन एज डोपंट। अब यहाँ पे डोप्ड सेमीकंडक्टर रहेगा, इट हैज़ हायर कंडक्टिविटी देन प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या, जो सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन में अगर हम इम्प्यूरिटी को ऐड करेंगे देन इट विल बिकम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसकी कंडक्टिविटी सिलिकॉन की कंडक्टिविटी से ज़्यादा है। दीज आर ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, दीज आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स, and there are two types of semiconductors, first type is n type semiconductor, n type semiconductor। अब यहाँ पे क्या रहेगा, n type semiconductor contains increased number of electrons, n-type semiconductor contains increased number of electrons in the conduction band। अब n-type semiconductor बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स हैं इनमें हमको ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे सिलिकॉन आता है, ये जर्मेनियम है, यहाँ पे फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज पेंटावैलेंट एलिमेंट्स। पेंटा का मतलब होगा 5, इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयरफॉर दीज आर पेंटावैलेंट एटम्स। इन पेंटावैलेंट एटम्स को ग्रुप नंबर 14 में सपोज सिलिकॉन और जर्मेनियम इनके साथ मिक्स कर दिया जाएगा, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब सिलिकॉन, ये जो ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स हैं दीज आर टेट्रावैलेंट, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम सिलिकॉन की। ईच सिलिकॉन एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड टू इट्स नेबरिंग सिलिकॉन। यहाँ पे ये टेट्राहेड्रली बॉन्डेड रहेंगे
ये सब इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ। ऑल दीज आर दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये अपने नेबर के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे फॉस्फोरस, इसमें फॉस्फोरस को ऐड करेंगे, सम ऑफ द फॉस्फोरस एटम्स ऑक्यूपाई द रेगुलर साइट ऑफ द सिलिकॉन। यहाँ पे ये फॉस्फोरस है, ये कुछ सिलिकॉन की रेगुलर साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। ये आ गया फॉस्फोरस। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, दिस 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी फ्रीली मूव्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा कंडक्शन बैंड में, एंड द मटेरियल बिकम्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एन फॉर नेगेटिव हम ले सकते हैं, लेंगे हम। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको कौन सा डोपेंट यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ पेंटावैलेंट। इनके आउटर ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। हाँ, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके, ये मिल के ये बॉन्ड बना लेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इट कैन बी फ्रीली मूव्ड थ्रू आउट द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, द मटेरियल इज द n-type semiconductor and its conductivity is higher than the pure semiconductor. Now, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड कैन बी फ्रीली मूव्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। अब यहाँ पे जो दूसरा देखते हम, दैट इज सेकंड टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ग्रुप नंबर 14 में हमको ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स का एडिशन करना रहेगा। सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है, यहाँ पे बोरॉन ले लेते हैं, गैलियम है, ये इंडियम है। हाँ, अब यहाँ पे डोपेंट कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स रहेंगे, ग्रुप नंबर 13 के रहेंगे। अब सिलिकॉन ये हैं, group number 14 elements are tetravalent and group number 13 elements are trivalent। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो ये एलिमेंट्स हैं टेट्रावैलेंट, अब यहाँ पे अगर हम इनका सम ऑफ द बोरॉन एटम्स ऑक्यूपाई द रेगुलर साइड ऑफ द सिलिकॉन लाइक दिस, ये यहाँ पे है, ये बोरॉन डोपेंट हम यूज़ कर लेते हैं। दीज आर ऑल, यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। ठीक है, ये फिगर इस तरह आ जाएगी। अब यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जैसा यहाँ पे ये दोनों था, यहाँ पेयर बन रहा था, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन ये बोरॉन ट्राइवैलेंट है और जो सिलिकॉन है ये टेट्रावैलेंट है। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इज लेस, बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम। अब यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इज प्रेजेंट, इसको हम कंसीडर कर लेंगे कि ये एक होल है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेस है उसको कहा जाएगा होल। अब इस होल को फिल करने के लिए नेबर का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, नेबर का एक इलेक्ट्रॉन आके इस होल को फिल करेगा। अब जब ये होल फिल होगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया अब वहाँ पे होल बन गया, उसको फिल करने के लिए अगेन नेबर का इलेक्ट्रॉन आएगा जो उसकी विसिनिटी में रहेगा, वहाँ का एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका मतलब ये जो होल है इसकी शिफ्टिंग हो रही है, ये शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे एक होल बना, इस होल को हम कंसीडर कर लेंगे दैट इज पॉजिटिव सेंटर, पॉजिटिव सेंटर। अब ये जो सेमीकंडक्टर बना इसको क्या कहा जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस होल को फिल करने के लिए ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेमीकंडक्टर बना इट इज़ द पी टाइप सेमीकंडक्टर। कुछ मटेरियल्स ऐसे रहते हैं जिनमें एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज़ होता है, कुछ मटेरियल्स ऐसे रहते हैं
जिनमें पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। अब और कुछ ऐसे रहते हैं जिसके अंदर दोनों सेमीकंडक्टर्स का यूज़ होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो इट इज़ अबाउट द सेमीकंडक्टर्स। अब जो बुक है उसमें आप फिगर देखेंगे, उसमें नोट्स आप पढ़ेंगे। बुक पढ़ना कंपलसरी है, नोट्स भी मैं आपको देने वाली हूँ, लेकिन नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना है। डू नॉट डिपेंड ऑन नोट्स, यू हैव टू रीड द बुक थरोली। और जो प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसको आपको सॉल्व करना रहेगा। और इसमें हम एक्सरसाइज भी देखेंगे और नोट्स भी मैं आपको देने वाली हूँ इसकी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ये समझने के लिए हमको एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना है। सपोज वन इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग मोशन है, एक रहता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक रहता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब इट रिप्रेजेंट्स क्लॉकवाइज रोटेशन। इसको है ये एंटी क्लॉकवाइज, ये है, हाँ, अब ये है, एक का स्पिन रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म यहाँ पे शो नहीं होगा। द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाइज इन द स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन बनता है, द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाइज इन द स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर अनबैलेंस्ड स्पिनिंग मोशन है, इसका मतलब दैट मटेरियल एक्ट्स एज अ टाइनी मैग्नेट। तो जो एटम रहेगा, यहाँ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन एक्ट लाइक अ टाइनी मैग्नेट बिकॉज देयर स्पिनिंग एक्शन जनरेट्स इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस नहीं करेगा ये। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, 3 टाइप का मैग्नेटिज्म हमको मिलेगा। फर्स्ट टाइप इज डायमैग्नेटिक सॉलिड, सेकंड इज पैरामैग्नेटिक सॉलिड एंड थर्ड इज फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। अब जो सब्सटेंस रहेंगे जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, that solid is known as diamagnetic solid, and this solid repels in the applied magnetic field। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाएगा तो इट इज़ रिपेल्ड, दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज़ वीकली रिपेल्ड। और इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, दैट इज N2 मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल, NaCl, H2O, बेंजीन एक्सेट्रा। दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ डायमैग्नेटिक सॉलिड। हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसका एक्सपेरिमेंट रहेगा मैग्नेटिज्म मालूम करने का कि सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये सब हायर क्लासेस में आएगा। अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन देखना है और इनकी एग्जाम्पल बताना रहेगा। नाउ सेकंड टाइप आता है इसका पैरामैग्नेटिक सॉलिड। पैरामैग्नेटिक सॉलिड, इफ अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ some electrons, some unpaired electrons. If a solid consists of some unpaired electrons, then they are weakly attracted by the magnetic field, and these substances are known as paramagnetic substance. इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, देन Cu+2 आयन, Fe+3 आयन, Cr+3 ion. These are the some examples of paramagnetic solid. अब यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म शो होगा
इसमें इट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ थर्ड टाइप इज फेरोमैग्नेटिज्म। थर्ड टाइप इज ferromagnetism. Some substances are permanently magnetized, and these substances consist of large number of unpaired electrons. जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो लार्ज रहेगा, ज़्यादा रहेगा। एंड दीज सब्सटेंसेस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। दे शो मैग्नेटिज्म व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड, and these substances are known as ferromagnetic, and the phenomenon is ferromagnetism. इसका जो एग्जांपल है दैट इज आयरन, कोबाल्ट है, निकेल है, एसेट्रा। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो हियर ये थ्योरी पार्ट में यहाँ पे रोकती हूँ मैं, और बुक पढ़ना कंपलसरी है। नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी मैं कुछ दिन में।